I am reading from the book of Acts, chapter 4, and from verse 32. और हम आपके लिए पढ़ रहे हैं प्रेरितों के कार्य से चौथा अध्याय From verse 32. और 32वें वचन से। Acts, chapter 4, and from verse 32. और प्रेरितों के कार्य चौथा अध्याय 32वें वचन से आगे। And the multitude of them that believed were of one heart and of one soul. Neither said any of them that aught of the things which he possessed was his own, but they all had things in common. Go ahead, Alan. और 32वां वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। और विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन के साथ, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे का था। Now, this is talking about the early church led by Peter, the early apostles, and those who were spreading the gospel of Jesus Christ under a time of oppression from the Roman government. और ये उस समय की बात है जब नए नए कलीसिया की नई विश्वासी कलीसिया की स्थापना हो रही थी और पतरस अगुवाई कर रहा था। वो समय में जब क्रिस्ती होना बहुत ही मुश्किल काम था और रोमी साम्राज्य के नीचे ये सब चीजें दबाई गई थी, तो उस समय के पहले की कलीसिया के बारे में हम बात कर रहे हैं। So I want you first to put that in perspective as we are reading these verses. तो जैसे कि हम ये वचन पढ़ रहे हैं, आप उस समय के बारे में ध्यान दें जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। When you're reading the Bible, it's good to put a perspective of what were the times during which that particular book or chapter or even verse was written. और जब कभी हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, ये बहुत जरूरी होता है हमारे लिए कि हम ये जानें कि वो वचन, वो अध्याय, वो किताब परमेश्वर के जो वचन में लिखी है, किस समय पर लिखी गई और क्यों और किस हालात में लिखी गई। Remember that in your Bible study. और जब जब आप पवित्र शास्त्र का अभ्यास करें, आप ये चीज पर ध्यान दें। I go to the next verse, verse 33. And with great power gave the apostles witness of the resurrection of the Lord Jesus Christ, and great grace was upon them all. और अगला वचन पढ़ते हैं, 33वां वचन। और प्रेरित बड़े सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। Now again, if you missed the Saturday service on the Church of the Living Waters page on Facebook at 9 p.m., that was a power-packed word for every believer's life. और अगर आपने पिछले शनिवार का वचन अगर आपने ना देखा हो, बहुत ही सामर्थशाली परमेश्वर का वचन था। अगर आप उस वचन को आपने नहीं देख पाए तो You can also go to YouTube and we have just the message, and you can search for that message on youtube.com/Pastor Daniel Isaac. तो आप वो संदेश वापस जाकर इस कार्यक्रम के अंत के बाद जाके आप देख सकते हैं youtube.com/Pastor Dan के फेसबुक पेज पर, यूट्यूब के लिंक पर। Now, in this message, we spoke about how the protection of God exists, but there is a bonus protection called grace. और इस संदेश में हमने परमेश्वर से जाना कि कैसे परमेश्वर की सुरक्षा हमारे चारों ओर है और कैसे एक बहुताई से 3/3 से परमेश्वर की सुरक्षा हमारी जिंदगी पर रहती है, जिसका नाम है अनुग्रह। So if you heard that message, you will remember that grace is the borrowed time. Grace is the extended protection. Grace is the chance, the second chance that we receive through Jesus so that we can repent even though we have just sinned. और अगर आपको संदेश आपको याद हो, तो वो समय ऐसा है जो परमेश्वर के जो हमको परमेश्वर से हमको माफी मिलती है, हमारे को जो दूसरा मौका मिलता है जिसका नाम है अनुग्रह। जिस समय पर हम जीते हैं वो बहुत ही जरूरी है हमारी जिंदगी के लिए। And that's why I asked you
to have perspective of what's going on, because based on that sermon, if you read verse 33 and it says great grace was upon them all, it means that the power of the Holy Spirit had provided them with a great level, a power level of added protection. तो अगर हम यही पवित्र शास्त्र का वचन पढ़े और 33वां वचन पढ़ें, जिस तरीके से हम इसमें बात कर रहे हैं, बड़ा अनुग्रह या बहुताई का अनुग्रह उन पर है, हम उसी का समझ अगर हम इसमें आज के संदेश में डालें, तो इसका ये मतलब है कि परमेश्वर की बड़ी सुरक्षा उन पर थी। Verse 34, neither was there any among them that lacked, for as many of them were possessors of lands or houses, sold them and brought the prices of the things that were sold, and they laid them down at the apostles' feet, and distribution was made unto every man according as he or she had needs. हम आपके लिए पढ़ रहे हैं 34 और 35वां वचन। और उनमें कोई भी दरिद्र ना था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे, वे उनको बेच बेचकर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांवों पर रखते, और जैसे जैसे आवश्यकता होती उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते। Thank you, Rima Broadcasters, for all the birthday wishes. Thank you for all the church members who are just wishing me. Thank you. God bless you. I give glory to God for one more year that we're celebrating my birthday. And hey, glory be to God. Thank you. और सारे वीएमआ ब्रॉडकास्टर्स के प्रबंधक और हमारे कलीसिया के सदस्य, आप सबका धन्यवाद जो जन्मदिन की आप शुभकामनाएं भेज रहे हैं। परमेश्वर ने और एक साल दिया, सारी महिमा उसकी हो। Now, putting this into perspective again, everything that's going on in this Acts chapter 4, everything that's going on from verse 33 to verse 35 is a special circumstance during a time of oppression upon the early church. और हम आपको फिर से याद दिला दें, जिस हालात में ये वचन हम पढ़ रहे हैं, जिस हालात में ये सब चीजें हो रही हैं, खासकर प्रेरितों के कार्य के 4 अध्याय 33 से जो 35वां वचन हम पढ़ रहे हैं, ये एक खास समय था, उस समय जब कलीसिया को दबाया जा रहा था। Are you all with me? क्या आप हमारे साथ हैं? When I talk about oppression, I talk about a time when the Roman government was seeking out those who were preaching about Jesus and killing them. और हम उस समय की बात कर रहे हैं और इस दबाव की बात कर रहे हैं कलीसिया पर, जिस समय रोमी साम्राज्य की सेना कलीसिया के लोगों को ढूंढती थी और उनको पकड़ पकड़ के मार रही थी। To be a Christian or to be a follower of Jesus, or especially to be a preacher of the salvation provided by Jesus, was a crime. और उस समय वो खासकर परमेश्वर के कलीसिया में होना, या परमेश्वर के सबसे बड़ी बात परमेश्वर के वचन का प्रचारक होना या यीशु के पीछे चलने वाला होना, उनको पकड़ना या उनको उनके लिए एक बहुत बड़ा गुनाह था जिसे रोमी साम्राज्य ढूंढ रहा था। So this church was gathering together, and what they decided to do was to put everything together, to sell all of their possessions. They made an agreement to sell everything, to bring all the money together, no more self-possessions, but put everything together and then distribute it equally among those who were in hiding because of being Christians. और उस समय के जो पहले कलीसिया की हम बात कर रहे हैं, उस समय जब क्या हुआ, जितने भी कलीसिया के सदस्य थे जो पहली कलीसिया के साथ बने हुए थे, तो उन लोग ने क्या निर्णय किया कि एक साथ अपनी सारी पूंजी को बेचकर पूरी कलीसिया में लाए, और जितने लोग एक साथ कलीसिया में बने हुए थे या छुप के बैठे थे परमेश्वर के वचन को प्रचार करने के लिए और रोमी साम्राज्य से दूर भागने के लिए, ये लोग क्या कर रहे थे, अपनी जरूरत के हिसाब से या लोगों की जरूरत के हिसाब से उस कलीसिया में पूंजी बांटते थे। So put this into perspective as we read this teaching. तो जैसे हम ये शिक्षा सुन रहे हैं, ये सारे हालात को आप ध्यान में रखें। It was not a normal time like you and I are having. ये कोई सामान्य समय नहीं था जैसे आप और मैं जी रहे हैं। It was not a time where
we could just fellowship or just praise God. और ये ऐसा समय नहीं था कि जब हम एक साथ मिलकर सहभागिता करें और परमेश्वर की स्तुति करें। It was a time that believing or following or practicing the teachings of Jesus was a crime. और ये ऐसा समय था कि परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करना, उसके पीछे चलना या उसके बारे में बात करना एक बहुत ही बड़ा गुनाह था। Are you ready? क्या आप तैयार हैं? Acts chapter 5. और प्रेरितों के कार्य 5वां अध्याय। But a certain man named Ananias, with Sapphira his wife, sold a possession and kept back part of the price, his wife also being in agreement to it, and brought a certain part and laid it at the apostles' feet. But Peter said, Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Ghost and to keep back part of the price of the land? Whilst it remained, was it not your own? And after it was sold, was it not in your own power? Why have you conceived this thing in your heart? You have not lied unto man, but unto God. That's from verse 1 to verse 4. हम आपके लिए पढ़ रहे हैं प्रेरितों के कार्य 5वां अध्याय पहले वचन से। और हनन्याह नाम एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लेकर प्रेरितों के पांवों में आगे रख दिया। परंतु पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वे तेरे पास रही क्या तेरी ना थी? जब तक बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। And Ananias, hearing these words, fell down, gave up the ghost, and great fear came on all them that heard these things. And the young men arose, wound him up, carried him out, and buried him. And it was about the space of 3 hours after, when his wife came, not knowing what was done, came in, and Peter answered unto her, saying, Tell me, whether you sold the land for so much? And she said, Yes, for so much. Then Peter said unto her, How is it that you have agreed together to tempt the Spirit of the Lord? Behold, the feet of those which have buried your husband are at the door, and they shall carry you out. Then she fell down straightway at his feet, and yielded up the ghost. And the young men came in, and found her dead, and carrying her forth, buried her by her husband. और 5वें वचन से आपके लिए पढ़ रहे हैं। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था ना जानकर भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वह भूमि इतने में ही नहीं बेची? उसने कहा, हाँ, इतने में ही। पतरस ने उससे कहा, ये क्या बात कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एक क्या कह दिया? तेरे पति को गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे बाहर ले जाएंगे। तब वह परंतु उसके पांवों पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए, और उसके जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। And verse 11 says, And great fear came upon all the church and upon as many as heard these things. Verse 12, And by the hands of the apostles were many signs and wonders wrought among the people, and they were all in one accord in Solomon's porch. That's verse 11 and 12. और 11वां और 12वां वचन आपके लिए पढ़ रहा हूं। और सारी कलीसिया पर और इन बातों से सब सुनने वाला पर बड़ा भय छा गया, और प्रेरितों के हाथों बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे,
और वे सब एकचित्त होकर सुलेमान के ओसरे में इकट्ठे हुआ करते थे। So, church, when I was growing up and reading the Bible, this was one of the passages that I read, and I said, "What? Really? I mean, if somebody is just kind of trying to put a little extra cash for themselves from their maybe their tithes and their offerings. Maybe somebody's just trying to save some money for a rainy day, and they died." And in my mind, I said, "This looks or sounds like a very cruel God." और कलीसिया जब मैं बड़ा हो रहा था और मैं अब जवानी में ये वचन पढ़ रहा था और मैं इस वचन पढ़कर मैं ये सोचता था कि क्या ये ऐसा हो सकता है कि क्या कोई अपनी पूंजी से अगर उसके पास में से कुछ पैसा रखता है, अपनी जेब में कुछ पैसा रख लेता है ताकि कोई अगर उसकी मुसीबत के समय में वो पैसा खर्च पाए और वो मर जाता है, क्या हमारा परमेश्वर इतना अ, गुस्सा रखने वाला है? And so I thought that this war was a pretty unfair passage in the Bible. And I used to, you know, argue with God about this particular passage. और मैं इस वचन को पढ़ते-पढ़ते मैं बहुत बार परमेश्वर से बार-बार सवाल करता रहता था कि ये चीज़ कैसे? ये कैसे? मैं वार्तालाप करता रहता था कि हो रहा है, क्यों हो रहा है ये सब? But then the more I meditated, and then the more I opened myself up to understanding how the spiritual system in God's kingdom works and how the spiritual system works in the church, my eyes were opened. लेकिन जैसे-जैसे मैं गहराई से इस वचन को पढ़ता गया और परमेश्वर ने मेरी आत्मिक आँखें खोली और कैसे आत्मिक जगत में परमेश्वर का जो ये एक स्वर्ग का जो कार्यक्रम है, परमेश्वर की जो ज़िंदगी के उसके सिद्धांतों पे जिस वचन पे चलता है, तब मुझे समझ में आने लगा कि परमेश्वर किस चीज़ के बारे में हमें सिखा रहा है। And so, if you watched the Saturday night service, you'll understand the basics of how that system works. और अगर आपने शनिवार की सभा देखी होगी तो आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर किस सिद्धांतों पर चलता है। And yes, Satan himself testifies that there is a protection of a hedge by God upon you, upon everything that you own, upon your dwelling place. और शैतान खुद इस बात की गवाही देता है कि जो कुछ भी आपके पास है, आपकी पूंजी है, जो कुछ भी आपका है, आपकी रहने की जगह है, उसके चारों ओर परमेश्वर की सुरक्षा की एक दीवार बनी हुई है। If you fear God, you qualify for the threefold protection. अगर आप परमेश्वर का अपने दिल में भय रखते हैं, तो ये सुरक्षा आपके लिए ही बनाई गई है। And yes, the New Testament taught us that grace is the added protection. Even when the hedge is removed because of our sin, the grace gives us extra protection so that we can repent and be saved. और नया करार हमें बताता है कि कभी-कभी क्या होता है, हमारे पाप की वजह से अगर ये दीवार, सुरक्षा की दीवार उठाई जाती है, टूट जाती है, तो अनुग्रह हमारी ज़िंदगी में जो परमेश्वर ने दिया है, उसकी वजह से हमें और बहुताई से सुरक्षा मिलती है। एक मौका मिलता है कि हम पश्चाताप करें और वापस परमेश्वर के पास आएँ। Now, if we quickly go back a few verses and look at Acts chapter 4, and from verse 35, you'll see a bit of a background to what just happened before this Ananias and Sapphira's incident. और अगर हम जल्दी से पीछे जाएँ और प्रेरितों के कार्य में चौथा अध्याय देखिए 35वें वचन में अगर हम पढ़ें, तो हम जान पाएँगे कि हनन्याह और सफीरा के ये मरने से पहले क्या कहानी थी। And Joseph, who by the apostles was surnamed Barnabas, which is interpreted the son of consolation, a Levite, and of the country of Cyprus, having land, sold it, and brought the money and laid it at the apostles' feet. मैं आपके लिए 36वां वचन पढ़ रहा हूँ। और यूसुफ नाम कुप्रुस का एक लेवी था, जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबा अर्थात शांति का पुत्र रखा। उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपए लाकर प्रेरितों के पांव पर रख दिए। Now, what we're going to do is we're going to zoom in on a microscope and break down these verses from Acts chapter 4, verse 36, all the way to Acts chapter 5,
verse 12, we're going to break it down and understand the details of how this actually happened. तो हम क्या करें, गहरे रूप से इसका अध्ययन करेंगे। प्रेरितों के कार्य चौथा अध्याय 35वें वचन से आगे और 5वें अध्याय में 1 से 12वें वचन तक हर एक वचन को हम बारीकी से पढ़ेंगे और जानेंगे। I hope you're listening. I hope you are focused, and I hope you're taking notes. और मैं आशा करता हूं कि आप ध्यान से सुन रहे हैं और हर चीज को लिख के समझ रहे हैं। So the time is when the church is under oppression. और ये ऐसा समय है जब कलीसिया पर बहुत ही बड़ा दबाव का समय चल रहा है। What everybody is doing, the reason that they're selling all their possessions is because Christians are being killed. और उस समय क्या हो रहा है, किस कारणवश सारे क्रिस्ती लोग अपनी पूंजियों को बेचकर एक साथ एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि हर जगह क्रिस्ती लोगों पर दबाव डाला जा रहा है, उनके ऊपर रोमी साम्राज्य का कहर डाला हुआ है। Christian families, Christian men, women, and children are being thrown to the lions to be torn apart and eaten alive in front of an audience. और ये ऐसा समय था कि क्रिस्ती परिवार, उनके बच्चे, उनके बीवियां, उनके माँ बाप और उनका पूरा परिवार एक साथ शेरों के सामने फेंका जा रहा था और एक बड़ा तमाशा बनाया जा रहा था जब उनको चीर फाड़ के शेर खा रहे थे। Christians were being burned on lampposts for the entire city to see. और क्रिस्तियों को जलाया जा रहा था बड़े बड़े खंभों पर, जहां पर आग की मशाल लगाई होती है, वहां पर उनको जलाया जा रहा था। There was an incident that I read about which is so heartrending. It talks about believer men, women, and children who were burned on posts, and they were burned in one line in the main city, and people in that city were walking just normally like it was a everyday regular day and saying, these are those crazy people who believed in Jesus and they're burning alive. और एक ऐसी दिल चीरने वाली बात मैंने पढ़ी थी कि कैसा उस समय क्रिस्ती लोगों को उनके साथ व्यवहार किया जाता था। एक परिवार को खंभों पे बांधकर उनको जला दिया गया था और लोग, वहां के जो लोग थे, वो उनको देखकर कहते हैं, ये वो पागल लोग हैं जो यीशु में या क्रिस्ती लोग हैं, उन पर विश्वास करते हैं, और वो अपनी सामान्य जिंदगी जी रहे थे। So that's the reason why they were selling their possessions, because they could not be living separately, but now they had found some secret places to live. They went underground, they went into hiding, and they were living together, or they were living together in cells and in groups, and the money that they were selling was being put toward their perfection and their sustenance. और यही कारण था कि सारे क्रिस्ती उस समय के जो क्रिस्ती लोग थे, अपने पूंजी को बेच कर एक ऐसी जगह में अपने प्रेरितों के साथ बनकर बैठते थे और वहां पर छुप के रहते थे, ताकि उनकी पूंजी या उनको पहचान ना पाए कि क्रिस्ती लोग सामान्य जिंदगी तो वो जी नहीं सकते थे, क्योंकि उनके ऊपर रोमी साम्राज्य का प्रभाव था। इसकी वजह से वो सब अपनी पूंजी बेचकर उनके साथ बने एक कलीसिया में बैठे थे। So there was actually no need for them to keep any money for themselves, because all the money in agreement was being used to protect the early church. तो ये कोई मतलब नहीं था कि वो पैसा अपनी पूंजी बना कर रखे, इसलिए वो सब बेचकर वो सारा पैसा कलीसिया में डालते थे, इसके लिए ताकि उनकी सुरक्षा बनी रहे, ताकि वो परमेश्वर में बने रहे। And that's why Acts chapter 4 and verse 32 said that they were all one. They all believed together. They had all things in common. So they were literally living like one family. इसलिए प्रेरितों के कार्य 4:32 हमें सिखाता है कि वो सब एक मन के थे, एक साथ रहते थे, एक परिवार के साथ रहते थे, इसलिए उन सब की चीजें एक साथ ही बनी हुई थी। So it's so important for us to realize that this was the situation. तो ये बहुत ही जरूरी कि हम उस समय के ये हालात समझ जाएं कि क्या हो रहा था। And then the Bible talks about this guy who the church called Barnabas, that he came, he brought everything that he had and he sold it and just gave it to the apostles' feet. और यहाँ पर पवित्र शास्त्र हमें बताता है बरनबा के बारे में, जिसने जो कुछ भी उसके पास उसकी पूंजी थी, उसने सब बेचकर कलीसिया में लाके प्रेरितों के पैरों पर रख दी। And then in comparison to Barnabas,
we look at Ananias and Sapphira. और अगर हम बरनबा की तुलना करें हनन्याह और सफीरा के साथ, So, Ananias and Sapphira watched everybody in the church doing exactly this. और हनन्याह और सफीरा ने ये सब कुछ देखा कि कैसे लोग अपनी अपनी सारी पूंजी बेचकर जो कुछ भी उनको मिलता था वो लाके प्रेरितों के पैरों पर रख देते। ये सब चीजें वो देख रहे थे। And they watched Joseph, Barnabas doing the same thing. और उन्होंने बरनबा को भी देखा कि उसने अपनी सारी पूंजी का पैसा बेचकर, अब पूंजी बेचकर पैसा लाके पैरों पर रख दिया। Now they decide, let's do the same thing. और वो भी ये निर्णय करते कि हम भी अपनी पूंजी को बेचते हैं। But when they decide to do this, there is something else in their mind. लेकिन जब वो इस चीज के बारे में निर्णय लेते हैं कि वो अपनी पूंजी को बेचेंगे, उनके मन में और भी एक ख्याल चल रहा है। Chapter 5 and verse 3 explains that Satan filled Ananias's heart to lie. और प्रेरितों के कार्य 5:3 में हमें बताया जाता है कि शैतान ने हनन्याह के मन में एक ख्याल डाल दिया कि वो झूठ बोले। Stop for a second. एक बार रुक जाइए। Not any demon. किस छोटा मोटा शैतान नहीं, कोई राक्षस नहीं, Satan himself filled Ananias's heart so that he will lie. शैतान जो इस दुनिया का राजा, उसने हनन्याह को ये कहा कि वो झूठ बोले। That's the first thing you got to realize. ये पहली चीज आपको समझनी है। Acts chapter 5 and verse 9 says that they both agreed together to tempt the Spirit of the Lord. और 5:9 कहता है कि दोनों हनन्याह और सफीरा दोनों ने एक साथ एक मन होकर परमेश्वर को परखने की कोशिश की। Watch how this is all unfolding and watch how your eyes are opening to the realization and truth of what happened. और आप ध्यान से सुने और परमेश्वर आपकी ऐसे आत्मिक आंखें खोलेगा कि कैसे इस हालत में क्या हो रहा है। So they sold it. तो उन्होंने चीजें, अपनी पूंजी बेच दी। They sold their possessions. उन्होंने अपनी सारी पूंजी बेच दी They had all the money before them. और जितना भी पैसा आया वो सारा उनके सामने था। When they saw the money before them, immediately their heart opened for Satan to actually possess. और जब उन्होंने अपने सामने वो सारा पैसा देखा जो उनकी पूंजी बेचने के बाद उन्हें मिला, उनका दिल खुला था और उस समय शैतान उनके दिल में आके बस गया। And then when Satan entered into their heart, he convinced them to lie to the man of God, and not just to the man of God, but to God's Holy Spirit. और जब शैतान उनके दिल में बैठ गया तो उन्होंने उसने उनको समझा दिया या उनके दिमाग को घुमा दिया कि वो परमेश्वर के व्यक्ति के सामने, सिर्फ उसके सामने नहीं, लेकिन परमेश्वर की पवित्र आत्मा के सामने झूठ बोले। And then they agreed, the Bible says, to tempt the Spirit of God. Now, hey, this is not just a normal little lie. To tempt the Holy Spirit means to actually test whether He would know what they have done. और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी कि छोटा सा पाप नहीं था, ये एक बहुत ही गंभीर चीज थी जो उन्होंने एक साथ एक मन होकर परमेश्वर की पवित्र आत्मा को परखने की कोशिश की। When the Bible explains this verse in Acts chapter 5 verse 9, this is what the Bible is saying. और जब पवित्र शास्त्र 5:9 में हमें समझाने की कोशिश करता है तो ये उसका मतलब है। It means that they both spoke in this way. इसका ये मतलब है कि उन दोनों में आपस में ऐसे बात हुई। Maybe it was Ananias, maybe it was Sapphira who said it first, but because the Bible says that Satan filled Ananias' heart, I'm believing that he's the one who initiated it. और हो सकता है हनन्याह ने ऐसा कहा हो या सफीरा ने ऐसा कहा हो, लेकिन पवित्र शास्त्र कहता है कि शैतान हनन्याह के दिल में बैठा, तो हो सकता है हनन्याह ने इसकी शुरुआत की होगी। This is what happened in the backstory. तो ये पीछे की कहानी थी। Ananias said, you know what? I'm wondering whether all this drama that these people are doing, whether it makes any sense.
और हनन्याह अपने मन में कह रहा था और उसने सफीरा से ऐसा कहा होगा कि मैं सोच रहा हूँ ये सब जो ड्रामा चल रहा है क्या हमारे लिए सही है नहीं. I mean, come on, everybody is selling everything that they have. I mean, hey, this is our hard earned earnings, our money, our livelihood. और हमने ये सब अपनी जिंदगी की कमाई जो पूरी कड़ी मेहनत करके कमाई है सब लोग अपना चीज बेचकर यहाँ पर डाल रहे हैं. क्या ये सही है? And now they're just taking all of our money. और ये सब हमारा पैसा ले रहे हैं. I mean, what nonsense is this? This is cheating. तो ये तो छल की बात है. ये कैसे हो सकता है? I think these people are actually cheating us. मुझे तो लगता है ये लोग हमारे साथ छल कर रहे हैं. So we should actually not give this money to them. तो हम ये पैसा इनको नहीं देना चाहिए. We should keep this money for us. ये पैसा हम अपने पास रखेंगे, अपने लिए रखेंगे. Then Sapphira must have said, you know what? Let us test them and see if they actually know what we're doing. तो सफीरा ने कहा होगा चलो इनको चेक करके देखते हैं, इनको परख कर देखते हैं कि इनको समझ में आएगा या ये जान पाएंगे कि नहीं. That's what Acts chapter 5 and verse 9 means. और यही तो प्रेरितों के कार्य 5:9 समझाता है. It didn't just happen just like that. There was a और ये deeper discussion that happened behind the scenes. और ये ऐसे ही नहीं हो गया अचानक में. एक बहुत गहरी साजिश जिसको हम कहते हैं आपस में बात होने के बाद ये सब हुआ. So let's not give everything. Let's just take a little bit. And let's say that, yeah, this is everything, Pastor Peter. This is everything. This is all that we have sold. And let's see if the guy actually has the Holy Spirit. तो हनन्याह और सफीरा की आपस में बात होगी. चल एक काम करते हैं, पूरा नहीं देते, थोड़ा देते और थोड़ा अपने पास रख लेते हैं और देखते हैं पासवान पतरस को पता लगेगा कि नहीं कि हमने रखा है नहीं. देखते हैं और परख कर देखते हैं पवित्र आत्मा को. So as per the Saturday night service, the protection of God was lifted from them because they allowed Satan in their heart and they agreed together to test, to tempt, to deceive the Holy Spirit. और शनिवार के संदेश के मुताबिक इन लोगों की जिंदगी से परमेश्वर की सुरक्षा चली गई थी, उठ गई थी और शैतान उनके दिल में आकर बस गया था और इन्होंने परमेश्वर की पवित्र आत्मा को परखने की कोशिश की. But then because the Bible tells us in Acts chapter 4 and verse 33 that God's grace was upon them, they were still safe. और लेकिन जैसे प्रेरितों के कार्य 4:33 हमें बताता है कि इनके ऊपर अनुग्रह था परमेश्वर के पास, ये फिर भी सुरक्षा में थे. The very reason that they could go from their home and from their little room of deception all the way to the church, to the man of God, to where the apostles were, is because of grace. और यही कारण था कि वो अपने घर से जिस कमरे में भी, जिस खोली में भी वो रह रहे थे, वहां से निकलकर सब चीजें बेचकर वहां से वो प्रेरितों के जहां पर बैठे थे, वहां रहते थे एक साथ बनकर कलीसिया, वहां तक जा पाए सिर्फ अनुग्रह की वजह से. That's the reason that they were alive even when they reached the apostles' presence, because of grace. और अनुग्रह की वजह से ही वो जिंदा थे और प्रेरितों तक पहुंच पाए. So practically speaking, what were they supposed to do now? तो अगर हम सोचें तो इस समय उनको क्या करना चाहिए था? Satan filled Ananias' heart. और शैतान ने तो हनन्याह के दिल में ख्याल डाल दिए. Ananias and Sapphira together decided to deceive the Holy Spirit. और हनन्याह और सफीरा ने एक साथ मिलकर, एक मन होकर पवित्र आत्मा को परखने की कोशिश की. They both agreed mutually to lie, to test, to deceive. और दोनों ने एक साथ मिलकर ये निर्णय किया कि वो झूठ बोलेंगे और पवित्र आत्मा को धोखा देने की कोशिश करेंगे. So they were wanting to do everything opposite to the unity of the church. और जो कुछ भी कलीसिया की एकता बनाए रखता था उसके विपरीत ये दोनों करना चाहते थे. When we read in Acts chapter 4 and verse 32, it said, because they had all things in common, that great power of God was upon them to give witness. The Bible says that in Acts chapter 4 and verse 33 as well. और एक एक्ट्स 4
32 और 33 में जब वो बताता है कि उनकी एकता की वजह से परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का जो मान प्रभाव उनके ऊपर था, परमेश्वर की जो ताकत थी, सामर्थ था, अनुग्रह था, बहुत था, क्योंकि उनकी एकता एक साथ थी। So the moment they decided not to be with the oneness of the church and have deception in their heart, they stepped out of the protection. और जिस समय हनन्याह और सफीरा ने ये निर्णय किया कि वो एक मन होकर ना कलीसिया के साथ बनेंगे और वो कुछ अलग करेंगे, उसी समय उनकी सुरक्षा निकाल दी गई। Oh my God, church, I wish you would understand the depth of the meaning of this teaching. But Ananias and Sapphira was still alive, even though they had committed such a great sin, even though they decided to deceive the Holy Spirit, even though they were in a time when the church was under oppression, but they were busy thinking of how to deceive God's people and God's Spirit. और कलीसिया, अगर आप ये बात को समझ पाए, बहुत ही गहरी बात है कि किस तरीके से जिन्होंने उन दोनों ने निर्णय किया कि वो परमेश्वर की कलीसिया को, परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को धोखा देंगे, उनसे झूठ बोलेंगे, वो कैसे जी रहे थे, कैसे जी पा रहे थे ऐसे समय में, जिस समय में कलीसिया की एकता बहुत ही महत्वपूर्ण चीज थी। Their lives were in a completely different direction as opposed to what the church was doing in और unity. उन माफ कीजिएगा, और उन दोनों की जिंदगी जो एक कलीसिया की एकता थी, उसके एकदम विपरीत चल रही थी। And now came their chance to repent. और ये समय आया था कि उनको मौका मिला था कि वो पश्चाताप करें। Church, once again, I'm asking you, this is the time of the Word of God. Focus and listen. I tell you, there's nobody who can say this message is not for me. This is a great teaching from the Holy Spirit for you, so please focus. तो कलीसिया, मैं आपसे फिर से अनुग्रह करता हूं कि आप ये ध्यान से सुने, ये शिक्षा आपके लिए है। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि ये शिक्षा मेरे लिए है, तो आप ध्यान दें। This was their chance. और ये एक मौका था। Ananias and Sapphira were now going to approach the servants of God. And I believe that the reason they went separately also was about deception. और ये समय था कि हनन्याह और सफीरा प्रेरितों से, उस समय के अगुवाही करने वाले, उनसे मिलने जा रहे थे और दोनों अलग अलग गए। और मैं ये मानता हूं कि ये भी एक छल का एक निर्णय था। Ananias would have said, you know what? I'll go ahead and I'll see what happens. And when I tell them that, hey, this is everything I've sold, this is all the money. And if they say that, no, God has told me that there is more, I'll come back and I'll say that, oh, yeah, there is a little bit more. Sapphira is bringing the remaining. तो हनन्याह ने ऐसा सोचा होगा और ऐसे दिमाग में उसने सोचा होगा, ये रीति सोची होगी कि मैं जाऊंगा पहले और उनसे कहूंगा ये सब पैसा है जो मैंने बेचकर आपके पास लाया, और अगर उन्होंने कहा ये तो पूरा नहीं है, फिर मैं बोलूंगा हाँ हाँ सफीरा आ रही है, वो लेके आ जाएगी। Are you actually picturing what's going on? क्या आप अपने मन में ऐसी एक फिल्म बना सकते हैं क्या हो रहा है? So now Ananias comes before the apostles. Now he is still under the protection of grace. Now he still has a chance to repent. और अभी हनन्याह प्रेरितों के सामने आता है और अभी भी उसे एक मौका मिला है कि वो पश्चाताप कर सकता है। Every believer, when we commit sin, and I tell you, nobody can say that they're without sin. But because of Jesus, even though you commit sin, even though your heart might have deception, even though you might choose to even test the living God, you still have a chance because of grace. And that's why Ananias and Sapphira was still alive, church. और हम एक विश्वासी होने के नाते हम कभी नहीं कह सकते कि हम पाप नहीं करते। एक विश्वासी होने के नाते हर कोई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती करता है, लेकिन परमेश्वर का और परमेश्वर के यीशु मसीह की वजह से हमें जो मौका मिला है, अनुग्रह मिला है, यही मौका हनन्याह और सफीरा को भी मिला उस समय। At that moment, I believe the entire spiritual realm, both the kingdom of God
and the kingdom of Satan were waiting to see what is this Ananias going to decide and do. और मैं मानता हूं कि उस समय दोनों जगत के शैतान का राज्य और परमेश्वर का राज्य ये देख रहा होगा कि इस समय हनन्याह क्या निर्णय लेगा। Is he going to accept or is he going to deceive? क्या वो स्वीकार करेगा अपनी गलती या फिर वो छल करेगा। And as he steps before the man of God, he does attempt to deceive. और जैसे ही वो परमेश्वर के व्यक्ति के सामने आता है वो धोखा देने की कोशिश करता है। The Bible says that immediately he falls down dead. और पवित्र शास्त्र हमें कहता है कि उसी समय वहीं पर गिर जाता है और मर जाता है। There's a lot of talk among, Bible scholars. Some of them say that it was not the attack of Satan. Some of them say it was not God who did anything. But a lot of Bible scholars believe that because the Bible says that Ananias gave up the ghost, it means that at that moment he realized what he had done. He realized that he has deceived the Holy Spirit. He realized that even though he had grace, he still chose to try and cheat God, and he literally died of heart failure. और बहुत से पवित्र शास्त्र के अध्ययन करने वाले बहुत सी अलग अलग बातें करते हैं। कोई कहते हैं ये शैतान का हमला नहीं था, कोई कहते हैं ये परमेश्वर का कार्य नहीं था। लेकिन उस समय जैसे पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि उस समय हनन्याह ने अपनी आत्मा को छोड़ दिया या त्याग दिया और अपने शरीर को त्याग दिया, जिसको कहते हैं। ये ऐसा हुआ कि जिस समय उसे पता लगा कि उसने पवित्र आत्मा के खिलाफ कुछ झूठ कहा या उसको धोखा देने की कोशिश की, तो उसे बुरा लगा और उसी समय जिसे कहते हैं दिल का दौरा पड़ा, उसी समय वो मर गया। Now Sapphira is waiting for some news. और वहां सफीरा रुकी है कि उसको कुछ समाचार मिले। She's waiting. Why has Ananias not come out and told me, hey, do we bring the extra cash or do we keep it for ourselves and enjoy? और वहां सफीरा ये सोच रही मन में कि मैं वो बाकी का पैसा लेकर आऊं या अपने पास ही रखूं ताकि हम उसका मौज उड़ा सकें, और वहां रुकी हुई है। And she comes, and now she too is still under grace. She too still has a chance. और फिर सफीरा अंदर आती है, वो भी अनुग्रह में अभी भी बनी हुई है, अभी भी उसके पास मौका है। The kingdom of God and the kingdom of Satan are waiting to see what will Sapphira do. और परमेश्वर का राज्य और शैतान का राज्य दोनों रुके हुए हैं देखने के लिए कि सफीरा क्या निर्णय लेगी। And as Peter asks her, is this all that you guys have sold? And she says, yes. और जैसे पतरस उससे पूछता है कि ये चीज सारी पूंजी जो तुमने बेची है उसके पैसे हैं, और वो कहती है हाँ। During the time of grace, she chose once again to lie, to deceive the man of God, to try and deceive the Holy Spirit. और अनुग्रह के समय में होने के बावजूद हनन्याह ने फिर से झूठ बोला और परमेश्वर के व्यक्ति को और पवित्र आत्मा को धोखा देने की कोशिश की। And she dies as well. और वो भी मर जाती है। In the church, I tell you this is a really sad story. कलीसिया, मैं आपको कहता हूँ ये बहुत ही एक भयानक दर्दनाक कहानी है। It's a really sad story. बहुत ही दुख देने वाली कहानी है। And if you've watched the message on Saturday night, and if you're listening tonight, and you put these two together, you'll understand that there was a grave error on the part of Ananias and Sapphira. तो कलीसिया, अगर आपने शनिवार का संदेश देखा होगा और आज आप देख रहे हैं, तो आप ये दोनों चीजों को जोड़कर अब समझ पाएंगे कि इन दोनों ने, हनन्याह और सफीरा ने, बहुत ही बड़ी गलती की। This message is not about money. और ये पैसे के बारे में संदेश नहीं है। This message is not about your possessions that the church wants. और ये संदेश उस चीज के बारे में नहीं कि जो आपकी पूंजी है या कलीसिया वो पूंजी चाहता है। It's about our heart. ये हमारे हृदय, हमारे दिल के बारे में बात कर रहा है। It's about understanding about God's protection. और ये उस चीज की समझ हमें आ जाए कि परमेश्वर की सुरक्षा क्या है हमारे लिए। It's about understanding how grace still exists even though we sin. और ये समझ हमें आ जाए कि कैसे परमेश्वर का अनुग्रह बना हुआ है हमारे पाप करने के बावजूद। And it's about understanding that during the time of grace
We need to redeem ourselves. We need to seek repentance rather than still willfully sin. और ये समय है कि हम समझ जाएं कि अनुग्रह के इस समय में हमारे पास ये जो मौका है कि हम पश्चाताप करें, हम परमेश्वर से माफी मांगे और वापस उसके पास आए, या कि उसको हम धोखा दें या उसके साथ झूठ बोलें। I tell you, church, this word is for our lives. कलीसिया, मैं आपको कहता हूँ ये वचन हमारी जिंदगी के लिए है This is for every believer. और ये हर एक विश्वासी के लिए है। This message spoke to my life. और ये संदेश हमारी जिंदगी से बात किया And I realized how God has given me so many chances because of His grace. और मैं ये जान पाया कि परमेश्वर ने कितने मौके मुझे दिए हैं उसके अनुग्रह की वजह से। Yes, we all put a mask in front of the rest of the world. We put a mask to the rest of the church to try to say that we don't have sin and that we are righteous. हाँ, हम पूरी दुनिया के सामने, हम कलीसिया के सामने एक ऐसा और सबके सामने ऐसा एक नकाब पहन के दिखाते हैं कि हम बहुत धार्मिक हैं, हम कभी पाप नहीं करते। But when we watch this story unfold in the Bible, we understand that there's so many times that we have been an Ananias, that we have been a Sapphira in the presence of God. और जब हम ये कहानी पढ़ते हैं पवित्र शास्त्र में हनन्याह और सफीरा की, कि बहुत बार ऐसा हुआ कि हमारी जिंदगी में भी हम कभी हनन्याह थे और सफीरा थे। And it's only because of the grace of God that we are alive today. और सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से आज भी हम जिंदा हैं। But I tell you, church, I am nobody to judge you. लेकिन कलीसिया, मैं आपको कहता हूँ कि मैं कोई न्यायाधीश नहीं हूँ, मैं आपका न्याय नहीं कर सकता हूँ। I cannot judge you. I'm but a man. मैं तो सिर्फ मनुष्य हूँ, मैं आपका न्याय नहीं कर सकता हूँ। But the Holy Spirit is telling you tonight that there are many Like- who have fallen away. There are many who have died. There are many who have lost their lives just because they were in grace but chose not to repent, but chose to pursue deception against God and God's church and God's servants. And that's what happened. और पवित्र आत्मा आज आपसे बात कर रहा है कि वो आपको बता रहा है कि अनुग्रह ये समय है कि हम अपनी जिंदगी में पश्चाताप करें और बार बार पाप में ना गिरें। और अगर हम करते रहें तो हम परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं, और हम उसमें ऐसे धोखे में ना जिए कि हम परमेश्वर को बार बार झूठ बोलेंगे, बार बार छल करेंगे, कपट करेंगे, खासकर परमेश्वर से, परमेश्वर की कलीसिया की ओर, परमेश्वर के सेवक की ओर। This message is one more chance to remember that the grace of God exists for us, God's children. And if you want to protect yourself against the enemy, the adversary that 1 Peter 5:8 talks about, you need to have a heart of repentance because of grace. और ये आज एक संदेश जो है, ये आज एक फिर एक मौका दिया है परमेश्वर ने कि हमारे पास जो अनुग्रह है, हमारे पास एक मौका दिया है कि हम परमेश्वर के पास आएं, परमेश्वर से दूर ना जाएं और माफी मांगे और अपनी जिंदगी सही जिए, ताकि शैतान जो एक पत्रस पहला 5:8 की वजह से जैसा वो ढूंढ रहा है हमें, तो हम वैसी जिंदगी में ना जाएं। Church, we have run out of time. We started a little late and we've gone over an hour. But I tell you, this was God's word. Please receive it. Meditate on this word. Just spend some time tonight alone with God's Holy Spirit and allow God's word to speak to you. कलिशा, हम थोड़ा समय ज्यादा समय ले चुके हैं, आज हम 1 घंटे से थोड़ा ऊपर हो गए, लेकिन मैं मानता हूं कि पवित्र आत्मा ने आपसे बात की है। आज रात को आप पवित्र आत्मा या परमेश्वर से बात करें और उसके साथ समय बिताएं और जानें कि कहाँ आपकी जिंदगी सही है, कहाँ गलत है। And as we pray right now, God, I ask you for your Holy Spirit to touch your children. और जैसे हम अभी समय में प्रार्थना करते हैं, हम मांगते हैं परमेश्वर आप अपने बच्चों को छुएं। God, I ask you to speak to your children. परमेश्वर, मैं चाहता हूं कि आप अपने बच्चों से बात करें। I ask you to touch their hearts. मैं चाहता हूं कि आप उनके दिलों को छुएं, Speak to their lives. उनकी जिंदगी से आप बात करें। And tonight I ask you, O God, to give them one more chance. और आज रात को मैं मांगता हूं परमेश्वर आप उन्हें और एक मौका दें। As they've come to you with repentance, with a repentant heart, I ask you to forgive them. I ask you to heal them. I ask you to strengthen them. I ask you to anoint them. परमेश्वर, जैसे वो पश्चाताप भरा दिल आपके पास लेकर आए हैं, मैं चाहता हूं आप उन्हें माफ करें,
आप उनका अभिषेक करें। We thank you for your grace. हम धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह के लिए। We thank you for your love. हम धन्यवाद देते हैं आपके प्यार के लिए। And we receive your word tonight. और हम आपके वचन को स्वीकार करते हैं परमेश्वर। We ask this prayer in Jesus' mighty name. और यह प्रार्थना हम यीशु के महान नाम से मांगते हैं। And all God's people said, Amen and Amen. और सारे परमेश्वर के लोग कहें आमीन और आमीन।